Hello everyone. Through this video, you can note down as well as quickly understand the question and answers of class 7th geography lesson 6 human environment interactions, the tropical and the subtropical region. So before we move on to the question and answers, let us go through some important points. क्योंकि ये जितने भी important points हैं they are asked as one markers, match the following, fill in the blanks, true and false, MCQs किसी भी form में आ सकते हैं. So ये जो first से लेकर 9 तक points हैं rather 10 तक, so ये सारे मैंने कहाँ से लिए हैं, ये आपकी book में जो आपके टिक द करेक्ट आंसर्स एंड मैच द फॉलोइंग है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप शायद अपनी बुक को ना ओपन करें, जल्दी ज्यादा पढ़ना होता है कम टाइम में, सो रिवाइज करने के लिए इसको नोटबुक में इस फॉर्म में डाल दिया गया है नोट्स में. सो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेरीकल्चर, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेरीकल्चर. The process of obtaining silk through silkworms is called as silk sericulture. River's mouth, ये भी important है. The place where a river flows into another body of water, it is called river's mouth. For example, see this image. यहाँ पे river दूसरी water body में जाके मिल रही है, इधर भी river दूसरी water body में जाके मिल रही है. So ये जो area है इसको कहा जाता है river's mouth. Okay, so ये भी important point है. So let's move ahead. और ये जो points हैं, point 11 to 19, ये मैंने कहाँ से लिए हैं, ये आपकी बुक के जितने भी डू यू नो पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट है, डू यू नो और ग्लॉसरी के पॉइंट्स हैं, सो वो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिए. फॉर एग्जाम्पल क्विकली देख लेते हैं. ये डू यू नो नमामि गंगे प्रोग्राम पे है, ये स्वच्छ भारत मिशन पे है, यहाँ पे रिवर डॉल्फिन के ऊपर है, सो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग के ऊपर है. सो ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखना जरूरी है. ट्रिब्यूटरीज, वो स्मॉल रिवर्स जो मेन रिवर को ज्वाइन करती हैं, they tribute water into the main river, so this is important. Amazon basin, it's the largest river basin in the world. ये जितने भी highlighted points हैं they're all important. Population density, number of people that live in 1 square kilometer of area. Terrace farming, very very important. जब पहाड़ों के ऊपर steep slopes को कट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, उस पे सीढ़ी की तरह से सरफेस बना दिया जाता है, so that is called as terrace farming. So just have a look, all these are terraces. पहाड़ों को काट कर सीढ़ी की तरह से बनाया गया ताकि फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल किया जा सके. जब बारिश होती है तो मिट्टी ढह जाती है, तो उससे खेती सारी खराब हो जाती है, तो इसलिए उस पानी के फ्लो को रोकने के लिए टेरेस बनाए जाते हैं. एंड देन फ्रेश वाटर, रिवर गंगा में एक डॉल्फिन मिलती है जिसको लोकली सूसू भी कहा जाता है और उसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है. इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है. और ये दोनों पॉइंट्स 18 एंड 19 ये लेटेस्ट बुक में है, तो ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है. स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर एंड नमामि गंगे प्रोग्राम, ये रिवर गंगा को सेव करने के लिए चालू किया गया था, और स्वच्छ भारत मिशन, यू नो इट, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड इट, you should know the date. So this was for attaining universal sanitation. Now let's see the question and answers. This question 1 I have taken from your book only, and because this is important. Name the continent in which Amazon basin is located. So it is in South America. What are the crops grown by people of Amazon basin? So pineapple, sweet potatoes, maize, tapioca, cassava, which is also called as manioc, cocoa, coffee, all these things are grown. Other things are also grown. ये important है जो book में दी हुई हैं. Name the bird that you are likely to find in the rainforests of the Amazon. So we can find hummingbird, toucans, and the bird of paradise. What are the major cities located on river Ganga? This is the fourth part. So Rishikesh, Haridwar, Kanpur, Allahabad, Varanasi, Patna, Kolkata. These are the major cities located on river Ganga. And in Kolkata, there's a distributary of river Ganga. River Ganga कोलकाता में एंटर, वेस्ट बंगाल में एंटर करने से पहले दो पार्ट्स में बट जाती है. तो एक जो पोर्शन है हम उसको हुगली रिवर कहते हैं, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दिया हुआ है. And then where is one horned rhinoceros found? It is found in Kaziranga in Assam.
देन अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूजुअली 5 मार्कर्स में पूछ लिया जाता है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? सो इसमें क्या होता है, फार्मर्स दे कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, और एक लैंड पे वो फार्मिंग करते हैं। जब फार्मिंग हो जाती है उसके बाद जो बची हुई वेजिटेशन है दे बर्न इट डाउन एंड दे मिक्स दैट ऐश विद द सॉइल, जो राख होती है वो सॉइल के साथ मिक्स करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम एंड देन दे मूव टू अनदर लैंड, वहां पे भी यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। फिर 3 से 4 साल बाद वो अपने फर्स्ट लैंड पे वापस आते हैं। इससे क्या होता है, नेचुरली सॉइल रीगेन्स इट्स फर्टिलिटी, सो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो जाती है। And then difference between Ganga Brahmaputra basin and Amazon basin. सो अमेजोन बेसिन का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है। गंगा ब्रह्मपुत्र चेंजेस में सीजन में सीजनल चेंजेस आप देखेंगे, इट हैज अ मॉनसून टाइप क्लाइमेट। देन यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे इंटेंसिव कल्टीवेशन है, बहुत टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। दिस एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेशन है, एंड दिस इज वेरी थिकली पॉपुलेटेड, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे। और ये जिस इक्वेटर के जिस रीजन में लाई कर रहा है, जिस रीजन के आसपास, इट इज 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, और ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। Then give reasons why the rainforests are depleting. This also I've taken from your book only. So rainforests क्यों डिप्लीट हो रहे हैं? बिकॉज इंडस्ट्रीज आर एक्सपैंडिंग, इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के लिए पेड़ों को काट दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाउसेज, इसके लिए भी जंगलों में पेड़ों की कटाई की जाती है और वहां पे लोग रहना शुरू कर देते हैं। Then give reason why paddy is grown in Ganga Brahmaputra plains. क्योंकि पैडी यानी चावल, so it has grown in Ganga Brahmaputra plains because alluvial soil is found there. alluvial soil नदियों की वजह से बनती है, उसमें से जो सेडिमेंट्स आते हैं उससे, और ये बहुत फर्टाइल होती है। प्लस दिस एरिया रिसीव्स हेवी रेनफॉल, और राइस जो है उसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, इसलिए राइस ग्रो करने के लिए दिस एरिया इज गुड। देन लास्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अमेजोन गेट इट्स नेम? ये भी एक डू यू नो का क्वेश्चन है जो मैंने आपकी बुक से लिया है, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से मैंने इसको आते हुए नहीं देखा है, बट क्योंकि बुक में था सो आई हैव टेकन इट, पढ़ के जरूर जाना है। सो जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने डिस्कवर की अमेजोन रिवर, तो उनको अटैक किया था वहां के कुछ लोकल ट्राइब्स ने, और उन्होंने उस वक्त हेड गियर्स और ग्रास स्कर्ट्स पहनी हुई थी। सो जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को इन लोगों को देखकर ऐसा उनको याद आया कि जो ऐसी कुछ ट्राइब्स थी जो औरतों की थी और वो वॉरियर्स थे, मतलब लड़ाइयां किया करते थे रोमन एम्पायर में, और उनको वहां पे अमेजन्स बोला जाता था। सो इससे उस जंगल का नाम अमेजोन पड़ गया। ठीक है, सो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें कुछ मैप भी है, वो आप कहाँ से करेंगे? आप मेरे चैनल पे जाइए, सपना गोयल 1985, वहाँ प्लेलिस्ट्स पे क्लिक कीजिए और उसमें एक मैप नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और इसमें 5 वीडियोस हैं, 6 to 10th सारा मैप वर्क है। तो आपने किसका ओपन करना है? आपने क्लास 7th का मैप वर्क ओपन करना है, बिकॉज ये 7th का चैप्टर है। और आप यहाँ पे इस वाले मैप पे आ जाएंगे। इसमें लेसन 8 लिखा है, लेकिन अब ये लेसन 6 है, पहले लेसन 8 था। तो आपने ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर आपने मार्क करनी है, क्योंकि ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारा एरिया है जहाँ से गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। और एक और मैप है जिसमें मेजर रिवर्स की बात हो रही है वर्ल्ड मैप पे, जिसमें अमेजन रिवर मार्क की हुई है। तो ये भी मार्क करनी है, क्योंकि हमें अमेजोन बेसिन के बारे में भी चैप्टर में बोला गया है। लेकिन मैप वर्क आपने अपनी टीचर से पूछ के करना है। टीचर जो मैप वर्क बोलेंगी वो आपने करना है। अगर टीचर कहती है दोनों मैप्स कीजिए तो दोनों कीजिए। रिवर नाइल किसी और चैप्टर से रिलेटेड है, सो इसको इस चैप्टर में मार्क नहीं करना है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शेयर जरूर करें, और कोई गलती दिखे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।